Today we discuss continuous bivariable random variable. In this regard, we have to study three things: joint probability density function, then marginal probability density function of x and y, and at the end conditional probability density function of x and y. Now, how we find joint probability density function and what is the joint probability density function? Suppose x and y are the continuous bivariable random variable, then a function which is denoted by f of xy. You can clearly see that in subscript, that is xy, that is two variable x and y, is said to be joint probability density function. किस कंडीशन में ये joint probability density function होगा? अगर f of x y greater than equal to 0. आप लोग सभी जानते हैं नेगेटिव में नहीं हो सकता है, so f of x y must be positive, and if a constant is involved in the question, then you have to double integrate with respect to x and y of the joint PDF under the limit minus infinite to plus infinite for the x and y. So ओवरऑल लिमिट की बात करें तो वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट रहेगी, क्योंकि x और y दोनों की जो रेंज है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होती है. लेकिन क्वेश्चन में अगर रेंज 0 से 1 है तो आपको 0 से 1 के बीच में इंटीग्रल करना है. इट इज डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. दिस इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. नाउ सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. कहाँ तक का इंटीग्रल हम लोग करना चाहते हैं? लोअर लिमिट इज नेगेटिव इनफाइनाइट, अपर लिमिट जहाँ तक का सम करना चाहते हैं आप लोग, वो वैल्यू आप लोग चॉइस कर लेंगे कि यहाँ तक का सम हम लोग करना चाहते हैं, या क्वेश्चन में गिवन होगा कि कहाँ तक का सम करना चाहते हैं. लेकिन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जॉइंट प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है. सो डायरेक्टली वी कमिंग टू द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. दिस इज द मेन पार्ट. इसके बगैर कंटिन्यूअस वाला काम नहीं कर सकते हैं आप लोग, जिसके अंदर कंडीशनल फाइंड आउट करना है वो नहीं कर सकते हैं. सो क्वेश्चन के रिगार्डिंग मार्जिनल प्रोबेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस. नाउ हाउ वी डिफाइन द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन फॉर x? द नोटेशन इज fx and definition is sum of the probabilities with respect to y. So you have to integrate with respect to y of the joint PDF. Joint PDF is always given in the question. And what is the limit of the y? It is also mentioned in the question. Similarly, marginal of y then integrate with respect to x. So एक चीज आप लोग देख रहे हैं कि जब हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब x के लिए मार्जिनल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें इंटीग्रल y के रेस्पेक्ट में करना है, और जब y के लिए मार्जिनल फाइंड आउट कर रहे हैं तब हमें इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में करना है. दिस इज द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. पूरा क्वेश्चन साथ में आएगा, जिसके अंदर तीन चीजें आप लोगों से पूछी जाएगी, तो कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा ये. नाउ हाउ वी फाइंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन? First of all, conditional probability for x at the particular value of y. It is also mentioned in the question. किस particular value of y के ऊपर हम लोगों को conditional probability find out करना है? The formula for conditional probability is joint probability upon marginal probability of y, and the notation for the conditional probability of x is f of x upon y. Similarly, if we have to find out the conditional probability density of y at the particular value of x, then the formula will be same, but the denominator is different, because in this time the notation is f of y upon x. तो डिनोमिनेटर में x है, इसलिए x की मार्जिनल से डिवाइड करना है. न्यूमरेटर इज सेम फॉर द बोथ द पार्ट्स, but denominator is different. In short, conditional density is defined as joint probability upon marginal probability. Sometimes examiner is
add one more question. Is the variable x and y are dependent or independent? In that case, joint probability is equal to the product of marginal. If this result is true, then the variables are independent, otherwise the variables are dependent. तो marginal आप लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके होंगे क्वेश्चन के अंदर, दोनों marginal अवेलेबल होगी आप लोगों के पास में, केवल आप लोगों को प्रोडक्ट करके देखना है दोनों का। अगर प्रोडक्ट क्वेश्चन में जो गिवन फंक्शन है उसके बराबर आ जाए तो हम कहेंगे इंडिपेंडेंट है, नहीं तो हम कह देंगे इंडिपेंडेंट नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेडिंग पार्ट और द थ्योरी पार्ट। नाउ वी कमिंग टू द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू नोट डाउन द क्वेश्चन, देन आई विल एक्सप्लेन बोल द पार्ट। दिस वी हैव थ्री पार्ट्स: lambda, marginal and independent. Conditional, which we discuss in the next question. First of all, the elementary parts, we discuss the elementary parts. So write down the question. I will give you 1 to 2 minutes. You all write down the question. This is the joint PDF which is given in the question. Lambda into x plus y, and this is the range. जो इंटीग्रल की रेंज है, लिमिट है, वो 0 से 3, 0 से 3 है बेटा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट को रिड्यूस करके आपको जो रेंज गिवन है दैट इज 0 to 3, 0 to 3। इंटीग्रल की लिमिट बहुत छोटी करती है तो इजीली इंटीग्रल कर सकते हैं आप लोग। अच्छे से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। अगर पहले दो क्वेश्चन आपने समझ लिए देन द रिमेनिंग्स आर वेरी इजी। One by one we discuss the given three parts. So I think you all have written the main component of the question, that is f of x y, lambda into x plus y and the range. उसके बियॉन्ड रेंज आप लोगों की 0 है, मतलब 0 से नीचे कोई भी फंक्शन नहीं है और 3 से ऊपर कोई भी फंक्शन डिफाइंड नहीं है। Now we go with the first part. लैम्डा फाइंड आउट करना है। As I already told you, अगर लैम्डा फाइंड आउट करना है तो आपको डबल इंटीग्रल करना है अंडर द गिवन रेंज एंड टेकिंग राइट हैंड साइड एज 1 और लुक एट द सॉल्यूशन। Simultaneously you will write down the solution part also so that you can easily understood the question. We all know that by the definition of joint PDF, double integral with respect to x and y under the whole range minus infinite to plus infinite always equal to 1. Apply this formula for the given range. Our range is 0 to 3, 0 to 3 and our function is lambda into x plus y. Put करिए बेटा दोनों। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर जैसे अपन सिंगल वेरिएबल में अगर हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालते थे उसमें हम लिमिट्स ब्रेक करते थे सर, और इसमें हम x और y के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, हम लिमिट्स ब्रेक नहीं करके हम डायरेक्ट लिमिट लगा रहे सर, वो ब्रेक नहीं हो सकता उसमें माइनस इनफाइनाइट टू 0 या 0 to 3। दो अलग अलग कभी ब्रेकआउट नहीं होता बेटा, डबल इंटीग्रल में कभी भी ब्रेकआउट नहीं होता है। गिवन रेंज जो होती है वही अप्लाई करनी होती है आप लोगों को। सिंगल वेरिएबल में रेंज को ब्रेक कर सकते हैं, डबल वेरिएबल में कभी भी आप लोग दो अलग अलग टुकड़ों में रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर सकते। अगर करते भी हैं तो भी एप्लीकेबल रेंज कौन सी होगी आपकी, जो गिवन होगी क्वेश्चन में वही आपकी एप्लीकेबल होगी लास्ट में जाके। माइनस इनफाइनाइट से 0 तक तो कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है, सो दैट इज 0 एंड 3 के ऊपर भी कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो अगेन 3 के ऊपर वाला भी आप लोगों का 0 हो जाएगा। ओवरऑल उसमें भी क्या करते थे, जहां पर रेंज डिफाइंड है वही इंटीग्रल करते थे, बाकी छोड़ते थे आप लोग। यस सर। तो इसमें भी वही कर रहे हैं, बाकी रेंज को मैंने छोड़ दिया है बेटा। क्वेश्चन को ज्यादा लेंथी करने से कोई मतलब नहीं, ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत लंबा है तो ज्यादा लेंथी करने से कोई मतलब नहीं है। आपकी रेंज कितनी डिफाइंड है आप वहीं तक इंटीग्रल करिए। ओके सर। 0 to 3, 0 to 3 है। नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, बहुत सिंपल इंटीग्रल है। एज यू ऑलरेडी स्टडी इन
12th class also, 12th and first year. First integrate with respect to y. तो ब्रैकेट देखिए बेटा, द क्वांटिटीज इज x प्लस वाई. तो पहले x वाले का करेंगे एक्स वाई हो जाएगा, देन y का करेंगे वाई स्क्वायर अपॉन हाफ. लिमिट ऑपरेट करें, y की जगह 3 और 0. 0 की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो यू यूज ओनली अपर लिमिट, दैट इज 3. So if you put 3 in place of y, we get this equation. Now integrate with respect to x. So 3x का इंटीग्रल हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2. देन 9/2 का इंटीग्रल हो जाएगा 9/2 इंटू एक्स. इन दोनों के साथ में dx आएगा, इतना तो आप जानते हैं इंटीग्रल कैसे करते हैं. इन दोनों के साथ में dx आएगा, सो 9/2 इंटू एक्स. लिमिट अप्लाई कर दीजिए बेटा. इफ वी अप्लाई द लिमिट एंड सिंप्लीफाई, वी गेट लैम्बडा इज इक्वल टू 1/27. क्लियर? यस सर. यस सर. अब जहां जहां लैम्बडा यूज होगा वहां वहां 1/27 यूज करना है बेटा. आप लास्ट में यूज कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को लगे उस समय आप लोग लैम्बडा की वैल्यू 1/27 यूज करेंगे. नाउ इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू डिस्कस द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y. जब x के लिए करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है, और जब y के लिए करें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है. फंक्शन सेम रहेगा दोनों के लिए. नाउ प्लीज गो थ्रू विद द सेकेंड पार्ट. फिर समझा देता हूँ, अगर किसी जगह आप लोगों को नहीं पता चल रहा तो समझा देता हूँ, अदरवाइज इट इज वेरी क्लियर. सिंगल इंटीग्रल है, जब आपने डबल इंटीग्रल कर दिया तो सिंगल तो कर ही सकते हैं. अभी अभी किया है आपने, वही इंटीग्रल है, अभी अभी किया है. सो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फॉर x इज डिफाइंड एज इंटीग्रल ऑफ जॉइंट पीडीएफ विद रिस्पेक्ट टू y. जॉइंट पीडीएफ था बेटा अपना लैम्बडा इंटू एक्स प्लस वाई. लैम्बडा की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, प्लीज नोट दैट. लैम्बडा की वैल्यू मैंने पुट कर दी है. एक्स प्लस वाई का इंटीग्रल अभी अभी किया था बेटा अपन ने. दोनों के साथ में dy dy लो, तो एक्स dy का हो जाएगा एक्स वाई एंड वाई dy का हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन हाफ. लिमिट अप्लाई कर दें, देन यू गेट दिस इक्वेशन. एलसीएम ले लीजिए तो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा, जो लिखा हुआ है वो अच्छा दिखेगा. तो 2 का एलसीएम ले लो बेटा ब्रैकेट में 6. द ओवरऑल रिजल्ट इज 1/54 इंटू 6x प्लस 9. इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली 0 to 3. ऐसे लिखना है कंटिन्यूअस के अंदर, क्योंकि इस पूरी रेंज के लिए डिफाइंड नहीं है मार्जिनल. ये केवल डिफाइंड है 0 से 3 के लिए. अदरवाइज रेस्ट ऑल द वैल्यूज we have marginal density is equal to 0. Similarly, you can proceed with the marginal probability for y. इस बार इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में करेंगे. Please note down, then we move the slide. दोनों मार्जिनल को नोट डाउन करके रखना बेटा. दोनों का प्रोडक्ट करना है अपन को, क्योंकि लास्ट पार्ट जो मेरा है दैट इज इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट में अपन को मल्टीप्लाई करना होगा दोनों मार्जिनल को. तो याद करके रखना, साइड में कहीं लिख लीजिए आप मार्जिनल. Similarly, if we go through with the marginal probability of y, then the process will be similar, only we have to integrate with respect to x. So in bracket we have x plus y. So first quantity is x dx, उसका हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2. आप साइड में करके देख लीजिए, लिमिट पुट करके चेक कर लीजिए. एंड y dx का हो जाएगा yx. लिमिट अप्लाई करें, यू विल गेट दिस वैल्यू. आप चेक कर लीजिए बेटा, इंटीग्रल करके इसको.
नाउ इन द लास्ट पार्ट, अभी आप में से किसी ने पूछा था कि कैसे इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन करना है। सो पहले का मार्जिनल आप लोगों ने देखा बेटा, दिस इज द मार्जिनल ऑफ x एंड दिस इज द मार्जिनल ऑफ y। एज पर द कॉन्सेप्ट दोनों मार्जिनल को मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाना चाहिए जो क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है उसके बराबर। क्वेश्चन में हमारा फंक्शन था लैम्बडा इंटू एक्स प्लस वाई, लैम्बडा इज 1/27। सो आंसर आना चाहिए 1/27 इंटू एक्स प्लस वाई। एक बार चेक कर लेते हैं क्या आंसर आना चाहिए और क्या आ रहा है आप लोगों का। सो इन थर्ड पार्ट दोनों मार्जिनल का प्रोडक्ट करिए बेटा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो ये एफ एक्स है, ये आपका एफ ऑफ वाई है, और जैसा मैंने बोला क्वेश्चन में क्या गिवन था, लैम्बडा इंटू एक्स प्लस वाई। आप चेक कर लीजिए बेटा दोनों बराबर है क्या, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल आता है या अनइक्वल आता है, आप चेक कर सकते हैं। तो आप लोग कांस्टेंट को देख के बता देंगे, क्योंकि 1/54 इंटू 1/54 करेंगे तो वो 1/27 तो नहीं आएगा कभी भी। दैट मीन्स वी कैन से दैट एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट। दिस इज द प्रोसेस टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चंस बहुत इजी है बेटा, ओनली फोकस ऑन द इंटीग्रल। If you integrate the things correctly, then you will be awarded full marks. So more focus on integral. I will send the practice question. इस स्लाइड के अंदर 6 क्वेश्चन है, अपन 2 डिस्कस कर लेते हैं, बाकी मैं 4 आपको सेंड करूंगा। आप लोग कल संडे है, आराम से बैठ के 4 क्वेश्चन करें, फिर कोई प्रॉब्लम आती है देन वी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब मजा आएगा कि आप लोग सॉल्व करेंगे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तब डिस्कस करने में ज़्यादा मजा आएगा। तो 2 क्वेश्चन अपन अभी सॉल्व करेंगे, बाकी आप लोग एक बार सॉल्व करने की ट्राई करना, राइट? यस सर। नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मैं आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क छोड़ता हूँ। क्वेश्चन 3 करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन 3 लेते हैं अपन लोग। सेकेंड क्वेश्चन को आप लोग क्लासरूम में से गो थ्रू हो जाना। इन केस यू फील एनी डिफिकल्टी देन वी टॉक इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्वेश्चन 3 इज इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आप लोग इसको नोट डाउन करें, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के इस क्वेश्चन के अंदर। बिकॉज इन फर्स्ट पार्ट लैम्बडा फाइंड आउट करना है, इन सेकेंड पार्ट मार्जिनल, एंड इन लास्ट पार्ट इज द कंडीशनल। ये भी एक बड़े क्वेश्चन में आता है बेटा, 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, नोट डाउन कर लीजिए। 2 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे अपन लोग इस लेक्चर के अंदर एज ए रिकॉर्डिंग। अपन 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई विल गिव यू फॉर द प्रैक्टिस एज ए होमवर्क। और उन्हीं क्वेश्चंस को वी कन्वर्ट इनटू द असाइनमेंट्स। So please note down the question. You more focus on the range. The range of the integral is only 0 to 1, 0 to 1. So please do not take the full range, only integrate in the given range. Those who are able to solve this question, they can solve. Otherwise, I will explain the whole solution. So in first part, we have to find out the value of lambda. So we all know that by the definition of point PDF, integral under the full range minus infinite to plus infinite for x and y is always equal to 1, but our range is 0 to 1, 0 to 1. Please integral with respect to x and y under the limit 0 to 1, 0 to 1. First of all, we integrate with respect to y. So y का जब इंटीग्रल करेंगे तो लैम्बडा x को कांस्टेंट कंसिडर करते हुए इंटीग्रल करना है। Now the integral of y
you all know that is y square upon half. Apply the limit lower and upper. Lower की जरूरत नहीं है बेटा, 0 है. Upper apply कर दीजिए. Upper limit is 1, so replace y as 1, so 1/2 बचेगा बेटा. That is constant. Take it outside. Lambda by 2 बाहर आ जाएगा. The rest of the thing is x dx. Very simple integral. The answer is x square upon 2. Now apply the limit. It is again 1/2. So overall is lambda by 2 into 1/2 equal to 1. Lambda by 4 equal to 1. We get lambda equal to 4. Is that clear? Yes sir. जैसा मैंने बोला था बिल्कुल मैं उसी पर अभी भी एडमेंट हूँ. क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है बेटा आप लोगों को. ओनली अगर आप लोगों को पता चल जाए कि क्या फॉर्मूला लगाना है, सो मैं अभी भी आप लोगों को बोलूंगा मोर फोकस ऑन फॉर्मूलाज. ट्राई टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज. यू विल इजीली एबल टू गेट वेरी गुड मार्क्स. अब जहां पर भी लैम्बडा यूज करेंगे वहां पर वैल्यू 4 लेके यूज करना है बेटा आप लोगों को. तो हमारा फंक्शन जो लैम्बडा एक्स वाई था अब वो फंक्शन 4xy हो जाएगा. इज दैट क्लियर? यस सर. नाउ गो विद द मार्जिनल. एक बार आप लोग करें बेटा मार्जिनल, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था आप लोगों ने मार्जिनल. इफ यू वांट टू फाइंड आउट, मैंने एक ही मार्जिनल पूछी है. काइंडली गो थ्रू विद द क्वेश्चन. ओनली द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y. सो y की निकालने के लिए किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे पहले बताएं. x के रेस्पेक्ट में सर. वेरी गुड. ये रहा सॉल्यूशन. बहुत सही बताया बेटा आप लोगों ने. आंसर 2y आ जाएगा. इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों का स्कोरिंग रहेगा. नाउ द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y. इंटीग्रल द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. हमारा फंक्शन 4xy है. x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करें एंड द ओवरऑल रिजल्ट जो आप लोगों ने बोला बिल्कुल सही है. दैट इज 2y. लेकिन लिखने का प्रोसेस ये रखना बेटा, पूरी रेंज के लिए नहीं है. द आंसर इज ओनली फॉलो द रेंज 0 to 1. मैंने एक ही मार्जिनल इसलिए निकाला है बेटा क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी एक ही पूछी है आपसे, तो डिवाइड भी एक का ही करना होगा, इसलिए मैंने दोनों नहीं पूछे आप लोगों से. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x. तो डिवाइड बाय y होगा, तो मार्जिनल y वाले का डिवाइड करना है, इसलिए क्वेश्चन में खाली y पूछा हुआ है. आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों के कब डिवाइड करना है, किसका डिवाइड करना है. ओके Shall we go with the conditional part? Student, note down हो गया बेटा. Shall we go with the conditional part? Yes sir. यस सर. Now, कंडीशनल का याद रखना बेटा, वैल्यू वो डिवाइड करना है आपको, 2y से डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना बेटा. This is the conditional probability of x given y is equal to y. जिस वैल्यू पर आप लोगों ने मार्जिनल निकाला है उसका डिवाइड करना है. अब यहाँ पर कोई वैल्यू भी दे सकता हूँ मैं. अभी तक तो मैं आप लोगों को केवल y इक्वल टू y दे रहा हूँ. हो सकता है y की कोई वैल्यू दे दूँ बेटा पर्टिकुलर. अभी मैं समझा देता हूँ. y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए तो जो मार्जिनल का डिवाइड कर रहे हैं वहाँ पर y की वो पर्टिकुलर वैल्यू भी रखनी है लास्ट में आप लोगों को. अभी तो मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, आगे क्वेश्चन पे दूंगा मैं आप लोगों को. फॉर्मूला कंडीशनल का आप लोगों को याद होगा. x की कंडीशनल निकालनी है तो x अपॉन y लिखना है बेटा. और कभी अगर y की कंडीशनल पूछे देन y अपॉन x. तो डिनोमिनेटर में हो उसकी मार्जिनल का डिवाइड करना है. तो डिनोमिनेटर आप लोग देख सकते हैं x अपॉन y में y नीचे है, तो y की मार्जिनल का डिवाइड करें. जॉइंट अपॉन मार्जिनल. जॉइंट इज 4xy. मार्जिनल वी कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस पार्ट, दैट इज 2y. इजीली डिवाइड कर सकते हैं आप लोग. आंसर इज 2x और रेंज है आपकी 0 से 1. रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर आगे का पार्ट कंसिडर करते हैं अपन. यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोले, देन आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग.
No sir, no doubt. ओके, रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ कर दिया है। यहाँ तक का लेक्चर जो इम्पोर्टेंट था आप लोगों के लिए, अब प्रॉब्लम डिस्कशन है केवल। अब मैं जो आपको क्वेश्चन दूंगा बेटा, उसमें मैं क्या चेंज करूंगा वो बता देता हूँ, बाकी सारा पार्ट सेम है। मैं आप लोगों से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में x का पूछा और y इक्वल टू y रखा, y की कोई भी वैल्यू मैंने पर्टिकुलर डिस्क्राइब नहीं की है। सो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, उसमें मैं आपसे y की वैल्यू के ऊपर कंडीशनल पूछूंगा। तो ये जो आपने डिवाइड किया ना बेटा, इस जगह पर डिवीजन के अंदर y की पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करते हुए आप लोग काम करेंगे। अब आता है एक और पार्ट कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आंसर आया है बेटा आप लोगों का, ये 2x। अब कभी कभी एग्जामिनर यहाँ पर पूछता है कि ये तो आप लोगों ने कर दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेकिन मुझे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए x ग्रेटर देन 1 के लिए। तो जो आंसर आया उसको इंटीग्रल भी करना होगा 1 से ऊपर वाली वैल्यू के लिए। तो पर्टिकुलर वैल्यू पर आए तो आप लोगों को पर्टिकुलर आंसर देना है। क्रॉस आंसर ये है 2x। क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आप लोगों को, आप लोग केवल क्वेश्चंस को गो थ्रू कराएं, बाकी सारा काम क्लासरूम में से देख के आप लोग सॉल्व करेंगे। ये देखिए बेटा लास्ट पार्ट, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने आप लोगों से पूछी है। y को तो चेंज नहीं किया है मैंने, y को तो y रखा है, लेकिन x की वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया। देखो x ग्रेटर देन 1। क्यों चेंज कर दिया है? क्योंकि आप लोग क्वेश्चन में रेंज देखो बेटा, क्वेश्चन की रेंज 0 से पूरी है ऊपर तक, तो ग्रेटर देन 1 भी डिफाइंड होगा या नहीं होगा? अगर 0 से बड़ी सारी रेंज है आपके पास में, 0 से इनफाइनाइट तक, तो ग्रेटर देन 1 तक निकाल सकते हैं आप लोग? यस सर। 1 से इनफाइनाइट हो जाएगा, जब लास्ट में इंटीग्रल करेंगे वो 1 से इनफाइनाइट हो जाएगा।